Hello students, today we will study about the conjunction in English grammar. जय हिंद छात्रों, आज हम लोग अंग्रेजी ग्रामर की कक्षा में कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे. So everyone open your book and open the chapter conjunctions. Okay students, and now see here the conjunctions. First of all, definitions of conjunctions. A conjunction merely joins two sentences and sometimes words, phrases and clauses. Then students, it means एक conjunction जो होता है वो प्रायः दो सेंटेंस यानी दो वाक्यों को जोड़ता है, कभी कभी दो शब्दों को, दो फ्रेजेस वाक्यांशों को या दो क्लॉजेस या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है. Okay student, now see here the examples. He fell from the tree and broke his leg. वो पेड़ से गिरा और उसने अपना पैर तोड़ लिया. Then here and is a conjunction. Okay student, now see the second example. He is weak in English but he can talk in it. वो अंग्रेजी में कमज़ोर है लेकिन वो इसमें बात कर सकता है. The teacher said that the earth is round. टीचर ने कहा कि अर्थ पृथ्वी जो है गोल है. Here that is a conjunction. And in last example you can see I have not seen him since his mother died. Then here since is a conjunction. Okay student, now we would study something about the types of conjunctions. There are mainly three types of conjunctions. First, single word conjunctions. Second, conjunctions in pair. And third, compound conjunctions. Okay student, so see, in single words conjunctions you can find only a single word like but, it, or, after, till, still, etc. And second, in conjunctions in pair, here we can find two conjunction altogether. कंजक्शंस इन पेयर में हम लोग दो वर्ड एक साथ पाते हैं लाइक आइदर और, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो एज, हार्डली वेन, नो सूनर देन. ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट वन कंपाउंड कंजक्शंस. in this type of conjunction we can find more than two words for a conjunctions like in order that, even if, as soon as well as. These all are the kinds of compound conjunctions. Okay students, now see the classes of conjunctions. Conjunctions are divided into two classes. First, coordinating conjunctions. Second, subordinating conjunctions. So see here the first one, coordinating conjunctions. At first here written the definition of coordinating conjunctions. A coordinating conjunctions join together clauses of equal rank. इट मीन्स बच्चों यहाँ हम ऐसे दो सेंटेंस को या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं जिन दोनों का बराबर का महत्व होता है. एंड द चीफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर एंड, बट, फॉर, और, नॉर, आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर. तो ये सारे जो कंजक्शंस है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की तरह यूज किए जाते हैं. एंड दीज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर ऑफ फोर काइंड्स. ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं ये फोर काइंड्स के होते हैं. फर्स्ट, कम्युलेटिव और कप्युलेटिव कंजक्शंस. दीज टाइप ऑफ कंजक्शंस ऐड मेयरली वन स्टेटमेंट टू अनदर. बच्चों, कम्युलेटिव और कप्युलेटिव जो कंजक्शंस होते हैं ये सेंटेंस को ऐड करने का काम करते हैं यानी जोड़ने का काम करते हैं. Here you can see examples, and before examples you can see the copulative conjunctions like and, also, to, as well as, both and, not only but also, no less than. These all are the cumulative or copulative conjunctions which add two sentences of same kinds. Here you can see example, he is no less than his friend is guilty. यानी वो अपने मित्र से कम गिल्टी नहीं है, यानी जितना वो है उतना ही उसका मित्र भी. तो यहाँ देख रहे हैं दोनों में समानता है. इन द सेकेंड एग्जाम्पल, द फादर एज वेल एज द सन वॉज अरेस्टेड.
पिताजी और साथ ही साथ लड़का भी अरेस्टेड हुआ यानी पकड़ा गया। तो यहाँ सबका इम्पोर्टेंस इक्वल होता है। इन सेकेंड वन यू कैन सी हियर रिटन एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव इट मीन्स द अपोजिशन मीनिंग। एडवर्सेटिव कंजक्शंस एक्सप्रेसेस अपोजिशन और कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट। तो बच्चों जहाँ विरोध की भावना हो, विरोधाभास हो, वहाँ एडवर्सेटिव कंजक्शंस का यूज होता है, जो कि होते हैं बट, स्टिल, एट, ओनली, नेवरदलेस, वाइल, वेयरएज, हाउएवर, etc. हियर यू कैन सी आल्सो एग्जाम्पल, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। वो धीमा है लेकिन ही इज श्योर, वो निश्चित है। तो धीमा होने के बाद निश्चित है, विरोध की बात हो रही है ना। इन दिस वे यू कैन सी अदर एग्जाम्पल्स and the conjunctions are highlighted with marker. Third one is alternative. These conjunctions express a choice between two statement. जो ऑप्शनल हमें देते हैं यानी जो ऑप्शन देते हैं जोड़ने वाले सेंटेंसेस को, उसे ही अल्टरनेटिव कंजक्शंस कहते हैं। एल्स और अदरवाइज, नाइदर नॉर, these all are alternative conjunctions. Okay student, see the example, neither a borrower nor a lender be. ना तो आप एक उधार लेने वाले बने ना तो कर्ज देने वाले, यानी दोनों ऑप्शन है, तो दोनों में से कोई या कोई नहीं। ओके स्टूडेंट, दीज आर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस। एंड लास्ट वन इज इलेटिव। इलेटिव एक्सप्रेस एन इनर इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस मीन्स ये परिणाम को दर्शाते हैं। देयर फोर, फॉर, सो, हेंस, consequently these are the relative conjunctions. Here you can also see the example, he is sad for he failed in exam. वो दुखी है, कारण क्या है? क्योंकि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो एग्ज़ाम में फेल होने का ही नतीजा है कि वो दुखी है। तो ये क्या करते हैं? रिजल्ट शो करते हैं। he did not work therefore he failed. उसने काम नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया। ओके स्टूडेंट, now come on the second type of conjunctions, that is subordinating conjunctions. So firstly see the definition of subordinating conjunctions. A subordinating conjunctions join a clause to another on which it depends for its full meaning. तो बच्चों वे कंजक्शन जो किसी दूसरे क्लॉज पर आधारित होते हैं उसके पूरे मतलब को दर्शाने के लिए, यानी ऐसे सेंटेंस जिसका मतलब हमें समझने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर आधारित हो और वो कंजक्शन से जोड़े, तो ऐसे ही कंजक्शंस को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। अब यहाँ अलग अलग टाइप के क्लॉज होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में आप देख सकते हैं। हियर फर्स्ट वन इज टाइम क्लॉज, सेकेंड वन इज cause और रीजन क्लॉज, थर्ड वन इज पर्पज, फोर्थ वन इज रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, फिफ्थ वन इज कंडीशन, सिक्स्थ वन इज कंसेशन, सेवेंथ वन इज कंपेरिजन एंड लास्ट एट वन इज मैनर। सो इन टाइम क्लॉज यू कैन सी द एग्जाम्पल, आई वुड डाई बिफोर आई लाइड, यानी मैं मर जाऊंगा इससे पहले कि मैं लेटूं, यानी अपने झुकने से पहले मैं मर जाऊंगा। तो यहाँ मरूंगा कब? झुकने से पहले, एक समय दिखा रहा है ना, दैट इज टाइम क्लॉज। अनदर देखिए, मेनी थिंग्स हैव हैपेंड टिल आई सॉ यू, बहुत चीज़ हुए हैं टिल आई सॉ यू, जब मैंने आपको देखा, यानी आपके देखने के समय से बहुत कुछ हुआ। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे दिस ऑल कंजक्शन एक्सप्रेस द टाइम क्लॉज। सी द सेकेंड वन, कॉज और रीजन क्लॉज। वाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक जीवन है आशा है, यानी आशा कब है? जब जीवन है तभी, तो जीवन ना हो तो आशा नहीं है, यानी कोई रीजन नहीं होगा। सिंस यू विश इट इट शैल बी डन, चूँकि आपकी इच्छा थी इसलिए पूरा हुआ, तो कारण था इसीलिए काम हुआ। ओके स्टूडेंट, नाउ सी थर्ड वन, दैट इज पर्पज। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। सो वी कैन सी दैट वी ईट, हम खाते हैं क्योंकि जिंदा रह सके, तो यहाँ हमारे खाने का पर्पज है जिंदा रहना। ओके स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी, टेक न्यूट्रिशियस फूड लिस्ट यू शुड बी वीक एंड अनहेल्दी। इट मीन्स
पोषण वाले भोजन लीजिए, नहीं तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो पोषण वाले भोजन लेने का उद्देश्य क्या होता है कि हम हेल्दी रहें। तो ये होते हैं पर्पज वाले। नाउ सी द फोर्थ वन, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्केयरली स्टैंड। वो इतना ज़्यादा थका था कि वो खड़ा नहीं हो सकता था। तो टायर्ड होने के कारण वो खड़ा नहीं हो सकता था। दे वर्कड हार्ड थस दे पास्ट। उन्होंने कठिन मेहनत की, थस दे पास्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ सी फिफ्थ वन, कंडीशन। इफ यू विल सक्सीड इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो आप पास होगे। ये शर्त होती है कि आप मेहनत करोगे तभी पास होगे। नो वन इज अलाउड टू एंटर द सिनेमा हॉल अनलेस ही हैज़ अ टिकट। कोई भी सिनेमा हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक उसके पास टिकट ना हो। ओके स्टूडेंट, दीज आर द कंडीशनल। नाउ सिक्स्थ वन, कंसेशन। हियर द सेंटेंस हैविंग डबल मीनिंग। यहाँ पे जो होते हैं दो तरफे मतलब होते हैं। ही इज़ ऑनेस्ट तो ही इज़ पुअर। वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, लेकिन वो गरीब है। दो इज स्लो एट ही इज श्योर। हालांकि वो धीमा है लेकिन फिर भी निश्चित है। ओके स्टूडेंट, सी द सेवेंथ वन, कंपैरिजन। इट मीन्स तुलनात्मक। तो ये कंजक्शंस तुलना करते हैं दो स्टेटमेंट में। जैसे ही इज वीकर देन हिज एल्डर ब्रदर। वो अपने बड़े भाई से कमज़ोर है तो उसकी तुलना बड़े भाई से की जा रही है। और सी इज एज स्ट्रॉन्ग एज हर फ्रेंड। वो उतनी ही मजबूत है जितनी उसकी मित्र, तो उसकी तुलना उसके मित्र से की जा रही है। दैट आर द कंपैरिजन। एंड लास्ट वन इज मैनर। यह रिटन डू एज आई से। वैसा करिए जैसा मैं कहता हूँ। ही एक्टेड द रोल ऑफ अ बेगर एज इफ़ ही वर अ बेगर हिमसेल्फ। उसने बेगर का रोल ऐसे अदा किया जैसे वो खुद भिखारी हो। दिस ऑल आर द मैनर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ वॉच द वीडियो अगेन एंड try to understand all the conjunction very well. Okay, that's all. Thank you. And students, one more things, please like the video of your teacher and comment in comment box about your opinion or queries related to the video. Okay.